गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और सर हरिओम जी, क्या खबर है? ऑल वेल सर। अच्छा, परसों मीटिंग बात ही नहीं हो पाई तो सलेम वाली। अच्छा, और कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक कुछ हम लोग बातें कर लें। आज सर लोहड़ी है, लोग कब रहेंगे हमारी तरफ से तो? हाँ, अभी 17, 18, 19 लोग हुए हैं। हाँ, आज लोहड़ी की वैसे इसी टाइम जो है जी जो लोहड़ी के जलाने वगैरह का होता है, हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि लोग इधर से कम रहेंगे। मौसम भी खराब है ना। मौसम तो खैर ठंडी पड़ी थी तो 40 से तो बर्बादी आ गई हमारे सर। चलिए, और 2-4 मिनट लोग जुड़ जाए फिर। बिल्कुल सर। अच्छा, चेयरमैन साहब स्टेशन गए हुए, पहुंच रहे होंगे, तो स्टेशन से हम लोग को कहेंगे। मुकेश सर। सर गिरा सर, नमस्कार। नमस्कार, हैप्पी संक्रांति। सर आपके नमस्कार। तो आई थिंक नया वर्ष मंगलमय हो। दास सर, धर्मत सर, हरिओम सर, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं लोहड़ी की भी, नए वर्ष की। लेकिन आप तो शहर में रहते नहीं हो गुप्ता जी। अरे सर, मैं एक्चुअल में गया था बेटी के पास, अभी यूएस गया था। अच्छा। 15 तारीख से लेके और फिर मैं 8 तो लौटा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, बड़ी उम्मीद गया था, बड़ी उम्मीद तो से आप गया था। तो लौटा हूँ, तो अभी जेट लैग ही चल रहा है मामला। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपसे नहीं मिल पाए, आप आए हमारे शहर। हाँ, मेरा मन तो था आपसे मिलने के, लेकिन हुआ नहीं। जी, मैं था नहीं सर 15 तारीख से लेके 8 तारीख तक। तो विल स्टार्ट, आई थिंक 25 लोग हो गए, मुकेश सर भी जुड़ गए। सो आई लाइक टू वेलकम all our members joining us today, and today is good evening, and of course we like to wish all of you happy new year. Today with us Dipti from Lucknow is there. He will talk about commercial valuation of commercial property. Actually, as we know, residential property valuation is somewhat different. Well, commercial property, a number of factors is to be decided before working out the value of the property. So, a number of factors she will discuss. Actually, last seminar held in organized by IOB Lucknow, she had talked about this, and some of our members had requested that we should request Dipti to talk about the valuation of the commercial property, what he had talked in Lucknow. So that's why I had requested her. So she will be discussing about the commercial property. Now Mukesh sir had joined. Mukesh sir is our chairman, Institution of Engineers India, Kanpur Local Center. So I request him to talk something. ये बहुत अच्छा कवि भी है। पिछले बार अब उन्होंने दिल्ली के बारे में प्रदूषण कुछ कविता भी गाए थे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें कुछ बातें कविता के माध्यम से बताएं। तो अरेंजमेंट उन्हीं का रहती है यहाँ पे जो कमरे बुक कराने के लिए। तो मुकेश सर, प्लीज गिव सम टॉक टू अस। Thank you, Das sir, for my kind introduction. On behalf of Institute of Engineers, Kanpur Local Center, I would like to welcome all participants, all dignitaries, and especially to Deepti ji, who has accepted this invitation to deliver a very valuable lecture for the benefit of Institute of Engineers as well as IVA. We hope that in future IVA and the Institute of Engineers will continue this motto, and they will organize, both organizations will organize such type of many valuable talks on topics which are currently in demand. At this moment, I would like to wish a very happy new year to all members of IVA as well as of Institute of Engineers. So thanks a lot for giving me this opportunity, and I wish for a grand success of this talk, that everybody will get benefited after listening
Deepti ji on valuation of properties. Thanks a lot. और रमाकांत यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा हमारा स्पीकर दीप्ति को इंट्रोडक्शन दे। रमाकांत यादव प्लीज। ये जो है स्पीच खुद ही स्टार्ट होंगे कुछ भी काम हाँ सॉरी सर थैंक यू सर Dipti Kumari did her BE in Civil Engineering from BIT Sindri, Jharkhand in the year 2003. She completed her master degree in structural engineering in the year 2016 from BTU, Karnataka, and master degree in real estate. Graduation in the year 2021 from Annamalai University, Tamil Nadu. She is practicing valuer impaneled with major specialization by. She joined field of valuation in the year 2016 as a fellow valuer of Institution of Valuers. She also passed the IBBI exam in the year 2019 and obtained COP and registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India. She started self-practice as individual valuer in the year 2018 at North Karnataka and currently practicing at Lucknow, Uttar Pradesh since 2021. She is member of IVA, Institution of Valuers, Lucknow, IUERVF. She joined Sahara City Homes, Lucknow in the year 2003 and worked in field of estimation and project management. Worked at southern part of India also for Sahara City Homes project at Coimbatore in the state of Tamil Nadu and Dharwad, Karnataka. Thank you, Dasa. And I also like to invite Dipti Kumari to deliver his talk, her talk. Thank you, Dasa. Thank you. Dipti Kumari, please start your lecture. Thank you so much, Das. Thank you all valuer members. I'm very happy to get this opportunity to put my presentation on this platform. I'd like first to share my screen, my presentation. Some problem is there. As like sir, here many senior members are there, other valuers are there. They are more knowledgeable and experienced than me. So, but I'm trying to put my presentation in the best way. Sir, is my screen visible, sir? नहीं है Okay, anyway, sir, I'm starting with my presentation. Visible? Yes, Vijay, start. Today, like I'm presenting my presentation on valuation of commercial properties. So, commercial properties, जैसे कि now market for commercial property, it's increasing. But commercial properties, they are gaining momentum, and the valuation of commercial properties still, it's not like only land and building. Valuation of commercial properties are income generating properties. So we need a different approach to value them.
So the commercial properties, how they are generating income, commercial properties. So my screen is visible, na sir? Yes, yes. Yes, yes, it's visible. Okay, sir. Commercial properties income, like income is coming from rent, lease or monthly rents. So he कैसे उसको value करना है, depends. This is how will consider its income basis पे value करना चाहिए या वही, तो depends. So first I like to explain type of commercial properties classification. So commercial properties, office buildings are there. Office building like private office, conference rooms, open workspaces. Next type is retail spaces, shopping malls, grocery stores, departmental stores. लीजर्स में आ जाता है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, and then industrial and warehouse spaces, mixed use development, that two type of commercial properties are placed. Retail this will be also there, apartment भी रहता है, and offices also are there, and then commercial plots. Next. Factors affecting the value of commercial properties. First factor is location. It depends on what type of location it is there. Suppose the society is very posh, वहाँ पे entertainment और ये सब पे ज़्यादा standard of living is very high. So lot of like वो जो लोग where they are staying, like they look for more options for entertainment. So there is also like lot of demand of commercial properties. Commercial properties in the sense shopping malls, cinema halls, and all those things. Then many cities they are having centralized area. The centralized area with maximum commercial offices, then business activities, software parks, and corporate offices. That city is planned like that, so those things will come in that centralized area also. So that is another type of depends on location. Retail properties, then retail properties in that area, retail properties must be active in their area with lot of foot traffic, which is critical factor in determining the value. Accessibility. Accessibility, suppose that commercial property, roads, public transport, metro, rail connectivity, how is that property, how it is connected to it. Is it easily accessible? Road hai, so automatically its value will be more. If it is like in some remote areas where accessibility is very difficult, mode of transportation is not there, then automatically its value will be low. Then next is maintenance and appearance. So how that will like property, how it is accessible. Suppose like good shopping malls, new shopping malls will very attractive. But any new shopping malls, people are more attracted to. Okay, will go to that shopping mall. Then offices, people like to go establish their offices where it is having very good appearance and plus profit and like repair and all those issue is not there. And then next is public amenities and utilities. So location where there is sufficient parking facilities for parking, then others amenities, drinking water, toilets, and everything is there. The next is property market performance. The demand of this properties, it depends upon what the condition is in market. Whether it is like sluggish market is sluggish, so people are not interested in buying properties, economy problem.
So in that case, automatically all the properties will have low value only. And the last point is supply and demand. How is the supply? Supply and demand are inversely proportional. Whenever the supply will be there, automatically value may come down. Next, main thing is that when I like to concentrate on those points is methodologies that are being used in valuation of commercial properties. So already generally most the main three methodologies are like cost approach is there, market approach is there, and then income approach is there. So generally when we are valuing commercial properties, we'll go for income approach only because commercial properties are income approach, income generating properties. Then so first thing that cost approach is there. Like all the valuers we are using, we all know cost approach. So in that means mainly what is done there, that cost of land and building is added. We use market rate for land and for building replacement cost and depreciation. लेकिन ये है थोड़ा पहले दूसरे बैंक में बनी हुई है ना ये बिजनौर में भी बनी हुई है और मनी प्लस में भी सर कॉपी पेस्ट नहीं सर अलग अलग वैल्यू में ही दोनों में सर स्पीकर को छोड़ के बाकी अपने माइक बंद कर रख ले स्टार्ट इट मार्केट अप्रोच ये भी लाइक वेरी क्लियर हम सब वैल्यूअर इसको यूज करते हैं तो इन दिस सेम व्हाट इज रेट एंड ऑल व्हाट इज गोइंग इन मार्केट हाउ दे आर सोल्ड approval main approach prices of recently sold comparable and of identical properties we are using those market rates. And the next is income approach. So maximum of the commercial properties are valued through income approach only. So income approach, what happens in income approach? That in that what benefit that property will give in future. Based on that only its present value is determined. So in income approach, what happens? What future benefit? Like in case of if it is giving rent is coming out of it, then that rent what it is coming, it is calculated and also, and then it is discounted back to present day value how it will come. So in this income approach, we are using two main methods: income capitalization method and discount cash flow method. In income capitalization method, this method is most widely used for calculating value of commercial properties. Income capitalization method. In this, two main components are required. First one is net operating income and second is capitalization rate. Net operating income is the annual income. What is coming out of the property is generating. And from that it is deduction. Annual income we have to deduct the expenses, operating expenses. Example, in case office space is there or retail place is there, so what annual rent is coming, and from that we are deducting operating expenses. Operating expenses, maintenance will be there, utilities will be there, property tax, general repair, maintenance, all what are coming under this head, then all those things, operative expenses will be deducted from gross income. So after this deduction, gross net operating income is
Net operating income also shows profitability and performance of that commercial property. Means how profitable that property is. And next is cap rate. Cap rate is determined from the market value and net operating income of comparable properties. In the market, like what all properties are there. So in that, basically, on what price they are being sold and what cap rate और what is the value, तो उससे पता चल जाता है कि what cap rate is. Cap rate factor are derived from the market data and reflects the risk and return characteristic of different type of properties. In case of residential, like in case of residential building, this cap rate is much lower, and in case of commercial building, it is much higher. Cap rate, it is like depends. Any property is there, and um, property is there, and suppose what we have like we are investing in a property, and further what we want income from it, based on that only cap rate is determined. Cap rate, like commercial property, cap rate is very high, but it means like cap rate, if it is high, then it is on the riskier side. So based on this income capitalization rate, present value of the property is calculated by the formula net operative income divided by cap rate. Net operative income by cap rate is the current property value. Alternately, the cap rate can be found by dividing the property net annual income by its current value. So, advantages is that advantage of using this method is based on current market condition. We are using the cap rate, and from that, the current price value is coming is like is correct. Then this method, it has a disadvantage only, that presently what income is coming, we are using that income only. Suppose income may vary in future. Suppose like the rent changes. So in that case, if we are using same income, like in this, इसमें जैसे होता है कि एक ही इनकम पे हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू, बट फ्यूचर में होता है कि वो जो इनकम आ रहा है वो रेंट है वो चेंज हो जाएगा. तो in that case, ये this method is not appropriate. Then the last method is this one, discounted cash flow method. This method is now like gaining momentum. New methods are coming. People are trying to use this method, but it needs specialized training. This method. So discounted cash flow finds the present value of expected future cash flow using a discount rate. But it is like well-known time value of money. Like what rupees one? What is the value of rupees one? Today's value of rupees one will be more than what rupees 1 rupees in future. So in same principle is used in this discount cash flow. Cash flow, like after cash flow of each year is discounted at certain rate, and then it is added to get the present value. Then in this method of disadvantage is that here we are using projected income, estimated income is used. So it is not necessary that the exact value of the property will come. Disadvantage is that. So conclusion is that we can use many
any type of method, even combination of methods can be used to obtain the market value of the commercial properties. Thank you, sir. This was my presentation. Thank you. Thank you, sir. So very good lecture delivered by you. I like to tell one thing. जैसे कहा कि तुमने कि बड़े सीनियर मेंबर से सब लोग नॉलेजेबल है. एक्चुअली आश्वासन का इंटेंशन ये है कि हम सभी को इनकरेज करें कि कुछ ना कुछ बोलते रहे. तो जब नए मेंबर अगर आगे बोलेंगे तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे. तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए, तो ये नहीं कि सभी लोग तो पढ़े हुए हैं, सभी जान है, लेकिन ये कि ये डिस्कशन होने से नए नए कुछ हम तुमसे भी सीखेंगे, हमसे तुम भी सीखोगे. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो लेकिन अच्छा रहा. तो मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई डिस्कशन करनी हो तो प्लीज डिस्कस ऑन द टॉपिक. और कुछ डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन है जी. सर, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी मैडम ने जो बताई, जी. तो उसमें वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उन्होंने कंसीडर किए, कैसे करेंगे उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो देगा पार्टी? सिक्योरिटी तो कुछ देता है ना, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो रेंट हम लोग रेंट कैलकुलेशन के हिसाब में जाएंगे, उसका तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कुछ रहता है. नहीं, मैं बताऊं, इसका दो फैक्टर भी है. कुछ जो सिक्योरिटी लेते भी, कुछ जो नहीं लेते. मान लीजिए आपको 2 लाख रुपया आप सिक्योरिटी दिया, तो ये जनरली कैलकुलेशन क्या होती है, पहले हम मंथली उसका रेंटल निकालते हैं दुकान की. मान लो रेंटल हो गया 10,000 रुपया पर मंथ हुआ. फिर हमने इधर 2 लाख रुपया उनको दिया, तो 2 लाख में उनका इंटरेस्ट मान लीजिए पर मंथ 2,000 हुआ, तो 10,000 से 2,000 डिटेल तो 8,000 मिलती है. जनरली ये सिस्टम है. लेकिन हर जगह पे सिक्योरिटी, जो जहाँ पे बड़ी बड़ी कमर्शियल एरिया है, जहाँ पे मेन मार्केट में, वहां तो सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम है. लेकिन जो छोटी छोटी जगह पे है, सिक्योरिटी सिस्टम है ही नहीं. लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है, वहां पे भी मेथड पे ये कैलकुलेट करते हैं कि पहले हम वर्किंग करते हैं, मंथली रेंटल कितना आ गया, उससे हम जो इंटरेस्ट है, बैंक से जो इंटरेस्ट आएगी वो डिडक्ट करने के बाद ही उसका नेट रेंट हम कैलकुलेट करते हैं. ये जनरल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. ओके, थैंक यू सर. और कोई पॉइंट? अगर कोई पॉइंट है, मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ, दीप्ति के आगे मैं थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ. एक्चुअली आप देखे होंगे पिछले कुछ मेरे ख्याल 2-3 साल पहले जो सिस्टम से डीएम रेट वाले मार्केट, डीएम रेट से जो बेस कर कैपिटल वैल्यू हम निकालते थे, तो उसमें होता था रेंटल वैल्यू पे 325 मल्टीप्लाई करते थे. अगर सब लोगों को ध्यान हो, अभी करीब 2-3 साल पहले थी. वो सिस्टम ही गलत थी, इसलिए गवर्नमेंट को उसको विड्रॉ करनी पड़ी. तो एक्चुअली क्या होता था पहले जमाने में, जो जिनको दीप्ति ने कैपिटलेशन रेट बताई, उसको जनरल हम लोग यूआईपी कहते हैं, ईयर्स परचेज कहते हैं. जनरल हम लोग ये स्टैंडर्ड लिटरेचर यूज करते थे पहले, तो इसको वाईपी कहते थे. और करीब 6-7 साल पहले वो वाईपी को 12 लेते थे, 12. उसका पीछे भी रीजन था. अभी वो वाईपी का जो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसका पीछे भी रीजन है. एक्चुअली रेंटल वैल्यू मेनली इनकम बेस है. लैंड बिल्डिंग में आपका लैंड प्लस बिल्डिंग का वैल्यू लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन रेंटल वैल्यू इनकम बेस है. इनकम अगर देखा जाए, ये बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बेस है. आप मान लीजिए हमारे पास कोई कैपिटल वैल्यू कोई प्रॉपर्टी का 20 लाख हुआ, हम मान के चलते 20 लाख हम दुकान को बेच दिया, उसको बैंक में रखा, वहां से कितना इंटरेस्ट मिलेगी. इसको हम भाई वर्षा देखें, मतलब मेन तो ये है ना, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो जो मतलब इनकम बेस है, तो हम देखेंगे अगर जैसे हम ग्रॉस इनकम निकालते हैं, फिर आउटगोइंग डिडक्ट करते हैं, फिर नेट इनकम होती है. हम कहते हैं नेट इनकम को अगर बैंक में रखेंगे, जितना इंटरेस्ट मिलेगी वही हमारा मंथली इंटरेस्ट होगा. सीधी बात, इनडायरेक्ट वे में मतलब है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन है मेन बेसिक फंडा वही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख हुआ, उसमें आप मतलब आउटगोइंग चला गया. देखो आउटगोइंग में बहुत सारे फैक्टर है. हम तो जनरली कोई 10%, कोई 5 लेते हैं, स्टैंडर्ड हम 10% लेते हैं.
जो ग्रॉस इनकम से जो 0.9 मल्टीप्लाई कर नेट इनकम निकालते हैं, जो 10% डिडक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी गलत भी है। लेकिन हम इतना डिटेल एनालिसिस करना भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कोई जगह पे जैसे दुकान है, दुकान में कभी कभी होता है जो सीवर चार्ज, वाटर चार्ज, ये जितने चार्जेस पता नहीं लैंडलॉर्ड देता है या टेनेंट देता है, ये चीज फैक्टर जनरल हम कंसिडर नहीं करते हैं। कोई मेंटेनेंस है, जैसे मेंटेनेंस हुई कि 5-7 साल बिल्डिंग हम कहते हैं उस पर डिप्रिशिएट नहीं होता, लेकिन हम 10% उस पर भी आउटगोइंग मतलब घटाते हैं। हाउस टैक्स हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर वर्किंग करी जाएगी तो ये तो हर पॉइंट हम देखनी चाहिए कि उसका हाउस टैक्स कितना जा रही है, सीओ टैक्स कितना जा रही है, और फिर डिप्रिशिएट कितना हो रही है, फिर और लीगल एक्सपेंसेस और क्या हो रही है, ये हर चीज देखनी चाहिए। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग वर्किंग में एक छोटी बात बताऊं, ये डिपेंड करता है कितना फीस हमको मिलती है, जनरली वो भी फैक्टर है। हम वैल्यूएशन सेल में हमारे त्रिपाठी जी थे, आजकल लखनऊ बेस है, वो लालू प्रसाद जी घर गए थे वैल्यूएशन करने के लिए। वो 6 महीने लगा उनका वैल्यूएशन करने, जो लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, वो यहाँ कानपुर में वैल्यूएशन सेल में इंजीनियर थे, और तभी पूरा यूपी और उत्तराखंड इनका पूरा स्टेट इनके अंडर हुआ करता, बिहार भी उनके अंडर था। तो इसलिए डिपेंड करता है कितना हम उतना समय देके ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो इसलिए जनरली हम थंब रूल में मान के चलते हैं 10% आउटगोइंग होगी, तो जितना ग्रॉस इनकम हुआ उससे 10% नेट इनकम हो गया। नेट इनकम पे हम क्या करते हैं, वाईपी मल्टीप्लाई करते थे। वाईपी पहले करीब 8-10 साल पहले हम वाईपी 12 मानते थे, लेकिन आजकल हम उसको जो धीरे से 8 पे शायद आ गए, होता पता नहीं सब लोग क्या कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड पैटर्न हम 8 पे आ गए। उसका पीछे बेसिक ये है, जो बैंक का जो एफडी रेट है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। अभी कुछ प्रॉपर्टी का 3 साल पहले वैल्यू आपका जो 10 से या 12 से मल्टीप्लाई होकर जाया करती थी, आजकल वो 8 या 9 पे ही आ गई है। तो उसमें क्या होती है, वैल्यू घट जा रही है। तो इसमें जनरली बैंक पूछता क्या है, ये जनरली होता है, आप लोग सामने ये फेस किए होंगे, नहीं क्यों बात हो रही है। अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यू 4 साल पहले किया होगा और अभी किया होगा बेस्ड ऑन वाईपी, तो उस टाइम पे वाईपी हम 12 कंसिडर करते थे। मान लीजिए टोटल ग्रॉस वैल्यू आपका 10 लाख हुआ, 10% आप हटा दिए तो आपका 9 लाख हो गया। 9 इंटू 12 आपका हो गया 10,80,000। तो नेट इनकम 10,80,000 हुआ आपका कैपिटलाइज वैल्यू। लेकिन वही वैल्यू क्या हुआ, जब हम वाईपी कम कर देते हैं तो उसका वैल्यू या तो 8 पार होता है, नहीं तो कम होता है। तो बैंक जनरली क्वेश्चन करता है कि भैया 3-4 साल पहले जो वैल्यू आपका 10 लाख की थी वो 8 लाख कहीं से आ गई। तो सिंपल से जवाब आप लोग भी देना चाहिए कि आपका जो एफडी का रेट पहले 10 या 11% हुआ करती थी, आजकल 6% कहाँ रुक गई। तो ये तो इनकम बेस हो गई ना, जैसे चाहे कुछ भी हो, इनकम बेस में डिपेंड फंडा है कि कितना बैंक का रिटर्न है, रिटर्न पे डिपेंड करता है। तो जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे आपका 10% 11% पहले हुआ करती थी, तब हम वाईपी 12 थी, ये भी गवर्नमेंट का रूल थी। 12 को हम लोगों ने आजकल 8 इसलिए लिए क्योंकि आपका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कहाँ 6, 6.5, 7 के नीचे रहेगी, तो इसलिए वैल्यू कम हो। जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा इसलिए हमारा कैपिटल वैल्यू कम हो गई। ये सिंपल फंडा आंसर है बैंक को जवाब, क्योंकि बैंक कभी कभी ये पूछता है। तो कभी भी बैंक कोई पूछता, अगर आप सही हो, कभी दब के नहीं बात करना, बिल्कुल ठोस जवाब देना कि भैया तुम्हारा जो एफडी का रेट कम हो गई तो वैल्यू कम हो गई। जनरली प्रैक्टिकली होती है हर जगह। जहां तक रेसिडेंशियल बात है, ये तो हम कमर्शियल बात कर रहे हैं जहां 8 हो लेते हैं, लेकिन जो रेसिडेंशियल है वहां पे जनरली हम वाईपी या जिसको कैपिटलाइज रेट कहते हैं वो हम 6 पे आजकल लेते हैं। पता नहीं मेरे ख्याल लेना चाहिए भी, क्योंकि रेट जो आपका सेविंग के अकाउंट है, देखिए सिंपल फंडा ये रख लीजिए कि जो कमर्शियल रेंटल वैल्यू करेंगे, यूआईपी लेंगे, वो लेंगे आपका एफडी पे क्या रेंट है, और जो रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल 4 से 5% से ज्यादा देते नहीं है बैंक वाले, तो हम उसको 6 पे लेते हैं। जनरली हम जो कानपुर में प्रैक्टिस करते हैं वो जो कैपिटलाइज्ड रेट है, कमर्शियल के हम लेते हैं 8 और रेसिडेंशियल लेते हैं 6। ये जनरली वाईपी पे है, क्योंकि थोड़ी डिस्कशन हुई नहीं, तो जिसको हम कैपिटल रेट कहते हैं। रेट मतलब हम रेट को वर्किंग करते नहीं है कि हम ग्रॉस वैल्यू में नेट वैल्यू डिवाइड करने से रेट नहीं आती है। हम नेट वैल्यू मतलब रेंटल निकालने के लिए हम एक फैक्टर कंसीडर करनी पड़ती है कि फैक्टर क्या लेंगे। ये डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं, डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन, और मार्केट कंडीशन डिपेंड करता है बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देता था तो हम वाईपी ज्यादा लेते थे, और जब नहीं देता तो हम कम लेते। तो उस टाइम पे हम अगर होगा तो आपको याद होगा सब लोगों को, पुरानी जो 4-5 साल पहले हम वाईपी लेते थे 12, और उसे 12 महीने मल्टीप्लाई 144 हुआ करती थी। जबकि जो डीएम ने क्या करी थी, उसे 320 मल्टीप्लाई कर दी, मतलब 325 और 144, ये लगभग आपका डबल हुआ थी। इसलिए जहां पे डीएम रेट उस टाइम पे 4-5 साल पहले
जब 320 मल्टीप्लाई हुआ करती थी तो वैल्यू डीएम रेट पे और मार्केट रेट पे करीब करीब डबल का अंतर हुआ करती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट को उसको वापस लेनी पड़ी, क्योंकि वो गलती थी, वो उसका बहुत सारे जगह अपोजिशन हुआ जिससे उनको वापस लेनी पड़ी। बाकी अभी हम लोगों ने वही 8 मल्टीप्लाई करके ईयर्स परचेज 12 मंथ के 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपका कैपिटल वैल्यू निकलती है। ये जनरली फंडा है। बाकी अगर किसी को कुछ आइडिया बताइए। दीपक कुछ कहना है? हाँ सर। बताइए सर एक्चुअली मेरे को भी अभी कंफ्यूज है। इंडस्ट्रियल प्लॉट भी रेंट के हिसाब से कैलकुलेशन बोलते हैं करने के लिए, उसको कैसे करेंगे सर? देखिए, हम तो कह रहे हैं ये जो, क्योंकि रेंटल मेथड है जहां पे इनकम ही नहीं है वहां पर रेंट कैपिटल हम लगा ही नहीं सकते हैं। अगर वो रेंट अगर कोई लीज पे ले रहा हो, कि हम कभी कभी ये भी होता है ना कि प्लॉट को 90 इयर्स का लीज लेते हैं ना सर। नहीं, वो तो लीज पे उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी से लिया होगा, लेकिन इन्होंने जिसको लगाया होगा तो फिर इन्होंने किसको रेंट पे देगा इंडिविजुअल को? तो उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। हाँ, तो वो रेंट तो वही रेंट हम बेस मानेंगे। हम कभी प्रैक्टिकल वैल्यू पे रेंट एनालिसिस नहीं करेंगे। कभी कभी ये होता है खाली जमीन पे रेंट, मान लीजिए 200 मीटर जमीन है, 200 मीटर में वो कहेगा चलो भैया 5,000 रुपये रेंट है, तो हम उसका वैल्यू निकाल के नहीं करेंगे, वो गलत चीज हो जाएगी। हमें तो क्योंकि इनकम बेस है, हम 5,000 मानेंगे। अगर 5,000 वो भी अगर एक नंबर पे पेमेंट आ रहा होगा, 2 नंबर पे पैसा मतलब नहीं है, ताकि हमारा प्रूफ हो कि हाँ इतने नंबर पे ट्रांसफर हो रही है। और कभी कभी क्या हुआ कि सर एक वैल्यू ने दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग मेथड करके दे दिया। हाँ, तो हमने उनको मना किया कि हम दे नहीं सकते क्योंकि वो रेंट में दिया हुआ है उसको। हाँ, तो उन्होंने बोला कि रेंट में तो कम हो जाएगा वैल्यू। जी वही दिक्कत आ रहा है मेरे पास। देखिए, वैल्यूअर का फेस से मैं कह रहा हूँ, जो मैं अभी एक बता रहा हूँ, कल एक बैंक से फोन आया था, स्टेट बैंक से। ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है बैंक में, उसमें आधा बेच दिया, वैल्यूएशन रिपोर्ट और किसी का है। अभी बैंक से फोन आया, सर आपको ये रिपोर्ट देनी है कि आधा बेचने के बाद भी जो बचा वो वैल्यू कम से ज्यादा। तो इसलिए बैंक अपना सेफ्टी के लिए तो सोचता ही है। वो तो टोपी वैल्यू के ऊपर पहना, लेकिन हमें होशियार रखनी है। दोनों में से जो कम वैल्यू हो हमको वही सर्टिफिकेट, या तो सबसे आसान तरीका देखिए, आप दोनों मेथड से वैल्यूएशन करके दीजिए, बैंक को लिख दीजिए कि ऑन रेंटल मेथड वैल्यू इतना हो रही है, लैंड बिल्डिंग मेथड हो रही है, दिस इज अप टू द बैंक टू डिसाइड। हम अपना दोनों ओपन कर दिया, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ डीएम, ऑन द बेसिस ये है, ऑन द सी है। नहीं तो अगर हमें सर्टिफिकेट करनी जो कम वाली वही देनी है। हम तो दोनों लिख के दिए थे, तो वही दिक्कत हो गया ना सर। वो बोल रहे कि आप एक तो क्यों नहीं लिख के दे रहे? हाँ, तो जो कम है वो दे दो आप, क्योंकि जब एनपीए होगी तो बैंक वाले कभी नहीं मतलब छोड़ेंगे वैल्यूअर को। वो तो मालूम है सर, हमको तो पता है सर। वो बैंक वाले वो बोलेंगे कि आपने दिया है, आप समझो उसको। नहीं तो और अच्छा तरीका, वो तो हम देख रहे हैं सर। हम जो एनपीए का वैल्यूएशन करते हैं तो हम देख रहे हैं इधर बैंक वाले क्या करते हैं। देखो, ये केस छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे फाइनेंस पर्पस में मैं तो काम ही नहीं करता हूँ, उसी चीज छोड़ देता हूँ सर। नहीं, लेकिन उसमें जो वैल्यूअर दे रहा है ना, उनको भी समझाना चाहिए, मतलब क्योंकि एक तो हमारा एक ही कॉमन फैसिलिटी है, तो अगर आदमी गलत करते चले जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगे। मैं बता रहा हूँ एक वैल्यूअर ने क्या किया, एक वैल्यूअर से कुछ नहीं होता है। बैंक वालों को चाहिए रिपोर्ट और कुछ ही नहीं देखते हैं सर, ऊपर का पेज देखते हैं कितना वैल्यू है बस। नहीं, जो वैल्यू ने दिया उसको तो आप लोग समझा सकते हैं, भैया तुम गलत कर रहे हो। बोल सर, कितना बोले सर, बोल के थक गए हैं सर सबको। वही दिक्कत है, जब भी वैल्यूएशन के लिए कुछ भी होता है तो वही बोलने से प्रॉब्लम आता है। बैंक वालों को चाहिए कि वो रिपोर्ट उनको चाहिए बस, और कुछ नहीं। सही बात है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मेन रोड में इंटीरियर दिया हुआ है, 20 करोड़ रुपया इंटीरियर दिया है। आजकल 20 करोड़ रुपया इंटीरियर कहाँ से कौन सा देगा सर वैल्यूएशन? हाँ, कोई नहीं देगा। बताइए, वही तो दिक्कत है ना। उसको वैल्यूएशन किया है 70-80 करोड़ रुपया, तो मेरा वैल्यूएशन आ रहा है 40 करोड़ रुपया। वही दिक्कत, वही प्रॉब्लम आ गया, हमने छोड़ दिया वो काम। नहीं, ठीक है, छोड़ना ही अच्छा है, ऐसा करने से फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है सर। अच्छा, और एक पॉइंट पे भी डिस्कस करना चाहूंगा। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो रेसिडेंशियल है, आप अगर देखे होगे रेसिडेंशियल रजिस्ट्री है और कुछ कमर्शियल भी है।
लेकिन कभी कभी ये होता है रेसिडेंशियल प्लॉट पे भी लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी बना देते हैं। हाँ वही तो वो है। एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है और उसको हम कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल यूज हो रही है कमर्शियल जगह पे प्रॉपर्टी। अभी एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हमने छोड़ी इसलिए क्योंकि वहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट रेसिडेंशियल है, लोकेशन कमर्शियल है। इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग की होती है, कल को अगर एनपीए होगी तो अभी ये कमर्शियल, क्योंकि लैंड यूज कन्वर्जन हुआ ही नहीं, लैंड यूज कमर्शियल है ही नहीं, तो अगर हम कमर्शियल रेट लगा लेंगे, कल को एनपीए होगी तो उतना बिकेगी नहीं। तो इसमें भी हम लोग सभी लोगों को एक मतलब रहना पड़ेगा स्ट्रिक्ट कि जहाँ पे सैलरीड रेसिडेंशियल है वहाँ पे हम लोग कमर्शियल रेट पे न जाए, क्योंकि जो एनपीए होगी मतलब है तो मार्केट में ज्यादा रेट होगी, लेकिन क्योंकि लीगल उसका रेसिडेंशियल लैंड यूज कन्वर्जन नहीं है तो उसमें हमको नहीं जाना चाहिए, रेंटल मेथड अपनाना नहीं चाहिए, ताकि कमर्शियल मानते हुए, मतलब रेंटल मेथड हो सकती है लेकिन कमर्शियल मानते हुए उसको वैल्यू नहीं करनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ी पॉइंट हो रही है, लीगल पॉइंट है जिसको हम सबको ध्यान रखना बड़ी जरूरी है। तो सर उसको तो कमर्शियल नहीं करेंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हिसाब से करेंगे उसको। एक्चुअली समस्या हर तरह है ना, वैल्यूअर देखो, वैल्यूअर में जो डेफिनेशन है इट इज नाइदर आर्ट नॉट साइंस, तो इसलिए हम तो कभी कभी ये भी, क्योंकि हमें वे ऑफ रिप्रेजेंट, हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है, तो हम ये भी कर सकते हैं। देखो हमें अपने बात को अगर रखेंगे, सही ढंग से प्रोड्यूस करेंगे तो फिर गलत को नहीं कर सकता। इस केस में कभी कभी हम करते क्या है, मतलब ये तो इंडिविजुअल का राय है, कोई लीगल ऐसा नियम कानून है नहीं। मान लीजिए कुछ जगह पे ऐसा प्रॉपर्टी होता है रेसिडेंशियल लेकिन उसका कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, तो उसके से हम दोनों पॉइंट लेके ये भी कर सकते हैं कि भैया लैंडेड रेसिडेंशियल कंसर्न का ये वैल्यू है, कमर्शियल ये है, तो क्योंकि मार्केट में ज्यादा रेट है, हम ये ऑन द बेसिस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट रेसिडेंशियल है, इसके वैल्यू इतना है, प्रैक्टिकल इतना वैल्यू है, तो उसको एवरेज ले लीजिए। देखा ये मतलब ये नॉन टेक्निकल जॉब है, इसको हम कैसे मतलब बात, क्योंकि देखो हम, क्योंकि वैल्यूएशन में हम शुरू से है, वैल्यूएशन में डेफिनेशन नहीं है, इट इज नाइदर साइंस नॉर आर्ट्स। एक में एक जोड़ से दो तो होती है मैथमेटिक्स में, लेकिन एक में एक दो वैल्यूएशन में नहीं होती, कभी नहीं होती। अगर आपको दिए गए 2 + 2 कितना, सब लोग हो गए 4, लेकिन वैल्यूएशन में कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक होती नहीं, क्योंकि दिस इज आर्ट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एज वेल आर्ट। तो इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। ठीक है सर। हम बताओ गौरव, विकास सिंह क्या कह रहे हैं? स्टेट बैंक से, और प्रॉपर्टी लैंड जो है वो रेसिडेंशियल कैटेगरी में थी, कंस्ट्रक्शन उस पर कॉमर्शियल था, और जो आरएमएससी थे उनका कहना है कि नगर निगम म्यूटेशन जो है और टैक्स पे कर रही है, प्रॉपर्टी ओनर जो पे कर रहे हैं वो कॉमर्शियल टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप लोग अडॉप्टेड मार्केट रेट कॉमर्शियल क्यों नहीं इनबिल्ड कर रहे हैं। तो इस चीज में मेरी डिबेट भी हुई थी सर उनसे। मैंने कहा कि जब तक का कॉमर्शियल रेसिडेंशियल कन्वर्जन कॉमर्शियल में नहीं हो जाएगा, हम लोग उसकी वैल्यू कॉमर्शियल में नहीं ले पाएंगे। तो बार बार मेरे पर दबाव यही डाल रहे थे कि जब वो टैक्स अपना पे कर रहे हैं इन कॉमर्शियल कैटेगरी नगर निगम को, तो आप उसकी वैल्यू एज अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसा इशू मुझे कई बार फेस करना पड़ा है सर, और एक रिसेंट केस में भी मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में सर हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से क्या सलाह है हमारे लिए? देखिए, लेना देना दोनों अलग चीज है। अगर अब मेरा एक कमरा है, मैं अगर नगर निगम को पूरा 200 गज मकान पे टैक्स दे दूं, नगर निगम मना थोड़ी करेगा। आप बैंक से हम पैसा जमा करने, बैंक मना नहीं करेगा, लेकिन विड्रॉ करने मना करता है कि आप रजिस्ट्रेशन लगाता है। तो इसलिए हम अपना कुछ भी दे, नगर निगम को अगर टैक्स अपना 100 से ज्यादा दे रहे हैं उसे मतलब थोड़ी कुछ है। अगर मैं अपना ऑफिस खोला हूँ, ऑफिस में अगर कोई हम कहेंगे कमर्शियल इस्तेमाल हो रही है, हमारा जो ऑफिस में भी हमारा एक दिन छापा पड़ा था कि साहब यहाँ पे ऑफिस खोले हो, आपका जो है मतलब जो बिजली कनेक्शन है अब रेसिडेंशियल है, आपको कमर्शियल होना चाहिए। तो हमारा कमर्शियल केस्को से कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है, लेकिन लैंड यूज जो लीगल है वो रेसिडेंशियल है, और यूज हम कर रहे हैं ऑफिस है। देखिए, दो कितना अलग अलग चीज है। फिर मैं केस्को गया था, केस्को वालों को कहना था साहब एक कमरा अगर हो, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, एक कमरे उनका परमिटेड है, प्रोफेशनल वैल्यूअर को, प्रोफेशनल को एक कमरा परमिटेड है, उसे कमर्शियल लगती नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका बड़ा मकान है, मतलब हम रहते नहीं खाली 2-3 कमरे में ऑफिस चल रहा, तो इसीलिए आपको एक कमर्शियल लगेगी। तो वो जायज है, उनका नियम है केस्को का कि हम आपका एक कमरे से ज्यादा, चाहे वो आप भी अगर आपका अकेले एक कमरा हो, अगर कोई बिजली वाला कहता है कमर्शियल गलत मांग रहा, आप शुरू में चैलेंज कर सकते हो। लेकिन उनको शायद ऐसा कुछ प्रोफेशनल नियम है, एक कमरे से ज्यादा होगी तो आपको कमर्शियल लगे। तो कोई लेना
हम देना बात हो रहे, लेकिन इसका मतलब क्या मेरा मकान कमर्शियल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। हम हाउस टैक्स भी दे रहे कमर्शियल और बिजली बिल भी दे रहे कमर्शियल, मतलब कमर्शियल सिक्योरिटी करीब 60,000 जमा है मेरा के बिजली केस्को में, तो इसका मतलब थोड़ी कमर्शियल हो जाएगी। तो ये तो लीगल मैटर है, तो जनरली नहीं होगी। रेसिडेंशियल जहाँ लैंड यूज है वहां पे नहीं हो सकती। वैल्यू सर हम लोग रेसिडेंशियल कैटेगरी में ही उसकी कंसीडर करेंगे। देखो हम तो कह रहे हैं जितना बैंक मांगे आप दोनों लिख दो, रेसिडेंशियल इतना वैल्यू, कमर्शियल इतना, दिस इज अप टू यू टू डिसाइड। हम तो वैल्यू आपको आगे दे रहे हैं, उसे क्या मानना ना मानना आप उनके ऊपर छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? जहां पे कभी देखो, और एक चीज देखो मैं बता रहा हूँ, और दिक्कत क्या होती है, जैसे कोई यूपी साइड से लैंड है, मतलब कोई भी डिफरेंट इंडस्ट्री चाहे कोई भी स्टेट का हो, उन्होंने प्लॉट खरीदी 2 साल, मतलब बहुत, मतलब ये चीजें है, 2 साल पहले कोई प्लॉट लीज में लिया, प्लॉट का रेट आपको 8,000 पर स्क्वायर मीटर, मान लो 200 मीटर का छोटी प्लॉट मानते हैं, 1000 मीटर मानते हैं, 1000 मीटर 8,000 आपका कितना 80 लाख हो गया, हुआ नहीं हुआ? लेकिन वो जो लीज रेंट देते हैं साल में, देते 3 लाख 4 लाख, क्योंकि उनका तो मतलब 99 ईयर्स लीज होती है, 99 ईयर्स उतना पैसा देते हैं, तो एक साल में देते हैं 2-3 लाख 4 लाख देते हैं, तो 2 साल में इन्होंने 8 लाख रुपया दिया होगा डिपार्टमेंट को। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कितना कर रहे हैं? 80 लाख, कितना गलत है? तो इसलिए हम इस केस में जहां पे मतलब जो लीज का पीरियड ज्यादा मतलब कम बचा हो वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पे लीज पीरियड 99 ईयर्स हो और 3-4 सालों बैंक से फाइनेंस करने चाह रहा हो और वो जमा किया होगा उसको मतलब 8 लाख 10 लाख 12 लाख, और जो यूपीडी से सरकार रेट किया उसका वैल्यू बनना 80 लाख, और हम 80 लाख का वैल्यू कर दिए और 65% फाइनेंस हो गया, वो बाबूजी लेके चला गया, तो पैसा कहां से लाएगा? क्योंकि यूपी से तो पैसा दिया ही नहीं, वो तो 2-3-4 साल का पैसा दिया। ये भी बड़ी टेक्निकल इशू फंसती है, तो उसके से भी आप बिल्कुल बाकायदा क्लियर लिख देना उनसे, अगर देख लोगे अलॉटमेंट लेटर 3-4 साल में हुआ पूरा, देखो मोर के आपने कितना प्रीमियम दिया डिपार्टमेंट दिखाओ, तो जाके उसमें लीज रेंट फैंड से मतलब कुछ नहीं है। ये मेथड जो हम पढ़ते हैं वो भी काम में नहीं आएगा, तो इसलिए जितना प्रैक्टिकली हम डिपार्टमेंट को दिए हैं उतना ही तो जिम्मेदारी हमारा रहेगी। करेक्ट सर। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है। आजकल थोड़ी सी मतलब इशू बहुत हो गई है। अभी देखो आज भी कोई ग्रुप में आया, कोई बैंक को 12,000 रुपया पकड़ा गया, तो बैंक वाले तो इतना ही, एक मैनेजर 12,000 घूस में लेके पकड़ा गया, सीबीआई ने पकड़ा, आज ही कोई ग्रुप में मैं देख रहा था। तो इसलिए बैंक मैनेजर होते हैं एक आधा ऐसा, तो इसलिए हम उनसे दूर रहना बड़ी जरूरी है, और जो चीज गलत है वो गलत है। हम दोनों चीज लिख ले, जो बैंक है अपना डिसाइड करे, फाइनेंस तो उनको करनी है, हम तो अपना सजेशन दे रहे हैं। होता एक आधा मैनेजर, एक आधा ब्रांच, एक आधा काम हाथ से चला जाएगा, लेकिन हमारा कैरियर के लिए वो कोई नुकसानदायक नहीं है। बार बार ऐसा बोलने पर सर वो कहते हैं कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे वैसे करके पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं सर। वो जो बता रहे सही बता रहे, प्राइवेट बैंक में वैल्यूर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन देते भी है, और प्राइवेट बैंक में एनपीए भी ज्यादा मेरे ख्याल होता नहीं, क्योंकि वो डंडा मार के पैसा ले लेते हैं। हमारा अगर पैसा रेगुलर आते रहे बैंक को तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां एनपीए शुरू होती है वहीं पे दिक्कत होती है। तो एनपीए में वैल्यू हमारा जो सर्टिफिकेट करते हैं उतना वैल्यू रहना चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी एनपीओ को फर्क नहीं पड़ता। देखिए बैंक फाइनेंस करता है कस्टमर को देख के, हम फाइनेंस का जो जिम्मेदारी लेते हैं प्रॉपर्टी को देख के। तो आज जो प्रॉपर्टी हमारे बहुत बड़ा क्लाइंट था कानपुर में, बहुत बड़ी आदमी था, हाँ, लेकिन एनपीए हो गया तो हो गया, पूरा फैक्ट्री उसका 8-10 फैक्ट्री नीलाम हो गया। तो इसलिए समय पता नहीं कहाँ क्या क्या होता है, तो इसलिए हम लोग तो होशियार है नहीं, 2-4-5-10 हजार चक्कर हम अपना क्यों कैरियर दाव में लगा दें। अभी देखिए जितना वहां पे हुई थी, जो पीएनबी ने सर्कुलर की थी, छोटी छोटी गलती में हमारा भाई लोगों ने गड़बड़ हो गई नहीं हो गई। अभी तमिलनाडु एसोसिएशन ने कुछ उनके खिलाफ गए हुए हैं, लेकिन बैंक है, बैंक आपको डिपेंड करे क्या करे, वो तो बैंक के हाथ में, हम लोग उसको ज्यादा रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा जो भाई बंधु है उनको बचाया जाए, लेकिन कहाँ तक संभव है ये तो बात हो रही है, लेकिन हम गलत करें क्यों? जी सर। जो हम बताए संजय गुप्ता जी। सर मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उन्होंने हर सिटीज में अपनी पॉकेट्स कर रखी हैं कि कमर्शियल यहाँ पर बना सकते हो आप, यहाँ रेजिडेंशियल बना सकते हो, यहाँ पर आप क्या कहते हैं होटल्स का ले सकते हो। तो बहुत सारी
ओरिएंटेशन है पूरी जगह का। मैं यदि उड़ई की अपनी बात कर लूँ तो कई सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि आप रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बना सकते हो, वहाँ पर इम्पैक्ट चार्ज होगा। जो मैप सेंक्शन करेंगे वो, तो आपका उनका एक कैलकुलेशन है कि आपका सर्कुलेट है मल्टीप्लाइड बाई क्या कहते हैं आपका एक उनका गुणांक है, वो सब लेते हुए और प्लस उसका 0.5% लेते हैं। उसको कहते हैं वो सशर्त अनुमान। सशर्त मतलब कंडीशनल। उस कंडीशन में क्या है कि वो 1% क्या कहते हैं उसका ले लेते हैं सर्किल रेट का, और उसके साथ में वो खैर फिगर बहुत बड़ी पहुंचती है, लेकिन उसमें बहुत ही लोग कम इशू नक्शा पास करवाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। कॉमर्शियल में आप आवासी भी बना सकते हो, और आवासी में आप कॉमर्शियल भी बना सकते हो। इस टाइप में भी नया प्रावधान लिया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको इम्पैक्ट चार्ज देना होगा। बहुत सारी चीज़ें अभी लिए हुए हैं उन्होंने, नए जो बिल्डिंग बायलॉज आए हुए हैं उसमें उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि रेजिडेंशियल एरिया है और उसमें कोई प्रॉपर्टी कॉमर्शियल वो यूज कर रहा है, कॉमर्शियल यूज क्या होगा कि शॉप खोले होगा वो एक आध, पूरी प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल एरिया में क्योंकि पार्किंग नहीं है कुछ नहीं है तो कोई शॉप तो बहुत बड़ा हॉल शोरूम तो खोल ही सकता हो। उस केस में निश्चित तौर पे हमको रेजिडेंशियल ही रेट लेना चाहिए। सर्किल रेट जो है गवर्नमेंट का गाइडलाइन रेट है, वो कभी भी नहीं कहता कि आप कॉमर्शियल लो। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप स्टाम्प ड्यूटी पे करोगे तो वहां तो कॉमर्शियल वो ले लेंगे, लेकिन उससे हम अपनी वैल्यूएशन निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि सर्किल रेट, क्योंकि आप देखिएगा रजिस्ट्री ऑफिस में जो सर्किल रेट गाइडलाइन रेट होता है, जब आप कोई डीड कराते हो किसी प्लॉट की या किसी मकान की, तो वो तोड़ते नहीं है, क्योंकि डिमोलिश करके नहीं लेते। वो तो जितना एरिया आपका कवर्ड होता है, चाहे वो अनसेंक्शन्ड एरिया हो चाहे वो इलीगल एरिया हो, यदि डीड उनकी है आपकी 40/40 की, उसमें यदि रोड पर ही छज्जा निकला हुआ है, प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो वो उसका भी क्या कहते हैं आपसे सर्किल रेट का प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ये सब ले लेंगे, जबकि वो हम अपने वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्किल रेट बाय द वे जो डीड कराता है उसमें तो लिखिए 40 लाख, लेकिन जब हम वैल्यूएशन निकालने जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं जितना भी एरिया जो कि मैप से डिफर कर रहा है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है सर्किल रेट से भी वैल्यूएशन नीचे आती है। इससे एग्री हैं आपके? नहीं है? हाँ बिल्कुल है ना सर? तो अब उसमें क्या प्रेशर होता है, बंदा ये कहता है जो वैल्यूएशन कराने आता है कि साहब मैं तो इतना स्टाम्प ड्यूटी पे करके आया, और देखिए गवर्नमेंट की वैल्यू 50 लाख लिखी है, 40 लाख लिखी है, आप इसको 30 लाख लेके आ रहे हो, और मैं तो जबकि 40 लाख नंबर 1 में ट्रांजेक्शन किया है और नंबर 1 में हमने स्टाम्प ड्यूटी दी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि कल के दिन यदि वो टूट जाता है, स्टाम्प ड्यूटी को तो मतलब है कि वो स्टाम्प लेने से, ड्यूटी लेने से, उन्हें मतलब नहीं है आप गलत का हम गलत बनाए हो सही बनाए हो, वो कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, उनको तो ट्रांजेक्शन करना अपना ट्रांसफर करना। तो मेरा ये मानना है कि हर हालत में जो भी रेजिडेंशियल एरिया में इस टाइप की प्रॉपर्टी है उसमें रेजिडेंशियल ही रेट लेना चाहिए, कॉमर्शियल की तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। बैंक कुछ भी कहे, कोई भी कुछ कहे, फिलहाल मैं तो ये अडॉप्ट किए हुए हूँ, बाकी तुम्हारे बहुत सीनियर्स लोग हैं यहाँ पर, हमारे आदरणीय लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो मैंने अपनी बात एक रखी कि इसमें निश्चित देखिए कि इम्पैक्ट चार्ज जो ले रही है गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उसका भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन है, उस पर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिएगा बाइलॉज यदि मैं उड़ई के शेयर कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा, कानपुर का भी अपना बाइलॉज होगा केडिए का। नहीं भी बाइलॉज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे ना एक बार अगले नोट में कभी वो कर लेंगे। हमारा घर के हमारा जो यहाँ पे रेसिडेंशियल है, जो हमारा ऑफिस है, हमारा घर है, 4-6 मकान छोड़ गया, बहुत बड़ा होटल बन गया है रेसिडेंशियल एरिया। तो क्या बैलेंस क्या करो, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी डिफिनेशन में क्या हुई, मतलब लैंड यूज रेसिडेंशियल है, प्रॉपर्टी यूज हो रही कमर्शियल। सर सर्किल रेट में डीएम ने ये भी कर दिया है कि 50 मीटर की रेडियस में यदि कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, लाइक पंप, लाइक मॉल, लाइक हॉस्पिटल, लाइक सिनेमा, तो आपको वहां का सर्किल रेट 20% एक्सीड करना होगा, उतनी आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। नहीं कमर्शियल से 50% 1.5 टाइम है रेसिडेंशियल। अभी आवास विभाग ने क्या किया, आवास विभाग ने क्या किया, रेसिडेंशियल का कमर्शियल प्लॉट बनाया, नीचे कमर्शियल है ऊपर रेसिडेंशियल है, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा रेसिडेंशियल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन, जैसे मान लो 2.5 मंजिल का नक्शा पास है, जो हम लोग प्रोपोर्शन डिवाइड करते हैं, मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड,
तो हम लोग जनरली क्या करते हैं 40-30% लेते हैं लैंड यूज का जो ऑनडिवाइड शेयर है। तो हम ग्राउंड फ्लोर का मान लिया 200 मीटर है, 200 मीटर का 40% वाला 80 मीटर ग्राउंड फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर में 60 ऊपर ले लेते हैं। तो वो हमने कमर्शियल रेट लगा देते हैं, ऊपर हम रेसिडेंशियल लैंड रेट लगाते हैं। ये सब तरीका अपने अपने अपनाना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं ठीक है, लेकिन उन्होंने जो नए भी वो लिए हैं बाइलॉज लिए, उन्होंने क्या दिया कि भाई आपके 50 मीटर स्क्वायर उसमें रेडियस में कोई भी एक्टिविटीज हो रही है तो आपको सर्किल रेट पे करना पड़ेगा कॉमर्शियल 20% ऐड करके। अभी तो मैंने अपने मकान का ही क्या कहते हैं ट्रांसफर लिया था मदर से, जो गिफ्ट डीड वाला चल रहा था 5% वाला। तो उसमें आप सोचिए कि मेरे ठीक सामने मॉल है, 3 ट्रेन का मॉल है, वी मार्ट है, वो सब है, प्लस हाईवे है, रोड है मतलब में। तो उसमें उन्होंने मुझसे कमर्शियल रेट तो नहीं लिया, लेकिन 20% एनहेंस करके, क्योंकि कमर्शियल रेजिडेंशियल पे था, तो उन्होंने 20% एक्सीड करके ही लिया। तो वो हम लोगों को वैल्यूएशन में भी जोड़ना चाहिए। कमर्शियल रेट ना ले, यदि एक्टिविटीज हो रही है तो उसको अपन एनहेंस करके 20% के ड्यू टू नियर क्या कहते हैं 50 मीटर्स की त्रिज्या में कमर्शियल एक्टिविटी है, इसलिए मैं सर्किल रेट से इतना एनहेंस करके ले सकता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन है सर, बाकी तो मेरे ख्याल में अगले बार इसी पे एक चर्चा होना चाहिए। जी सर बिल्कुल, देखिए ना क्योंकि ये बड़ी टिपिकल सब्जेक्ट है ना, मतलब रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल हो रही है, उसमें क्या करना करे, हर चीज में दिक्कत है। ये तो बहुत बड़ा चीज है सर, रेसिडेंशियल हर चीज में वही है आजकल। रेसिडेंशियल एरिया पूरा कमर्शियल, आधा कमर्शियल बना रहे, आधा रेसिडेंशियल बना रहे। अभी कानपुर में और सिस्टम चेंज हो गई, जहां जहां मेट्रो चल रही है वहां एफआईआर बढ़ गई तुरंत। वो शायद 3.5 या 4 ऐसा एफआईआर हो गई। जहां मेट्रो ट्रेन चल रही है उसी के साथ 100 मीटर दायरे में वो एफआईआर बढ़ गई। अब बताओ वो वैल्यूएशन जो पहले हुई थी अभी में चेंजेस नहीं हो जाएगी? वो तो होगा ही सर। अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी तो पैसा चाहिए ना सर, वो तो ऐसे करके वो ले रहा है। हाँ सही बात है। और कोई सजेशन प्लीज? सर ये कॉमर्शियल वाला थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करने से अच्छा रहेगा सर आगे। जो बायलॉज की, हाँ जो रेसिडेंशियल एरिया में जो कमर्शियल के हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए हमारा यहाँ कटक में क्या होता है, गली जो होता है छोटा छोटा गली होता है, 10 फीट का गली होता है, तो उसमें कमर्शियल तो ज्यादा है। तो वहां पर दिक्कत आता है सर वैल्यूएशन करने में, क्योंकि पहले से जो वैल्यूएशन करके रखे हैं वो लैंडेड बिल्डिंग में करके रखे हैं, वो ज्यादा करके रखे हैं। सही बात। तो अभी हम लोग उसको अगर कमर्शियल रेंट के हिसाब से लेंगे तो वहां पर वैल्यूएशन भी कम आ रहा है। वही दिक्कत हो रहा है सर। इसके थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा सर, वही बात। चलिए अगले बार फिर कमर्शियल पे करेंगे फिर सर। और कोई? थैंक यू सर। अच्छा, और कोई सजेशन प्लीज? मेरे ख्याल में एक्चुअली आज मौसम भी खराब है यहाँ पे, तो यूपी दिल्ली में तो बहुत खराब रहे होंगे। और संजय तुम्हारा इधर कैसे मौसम? अरे सर क्या कहते हैं, बहुत कोहरा, आज तो इतना कोहरा रहा कि 50 मीटर्स तो बहुत दूर है की बात है। परसों तो मैं परसों हमीरपुर से लौट रहा था शाम को 7:30 बजे, और कानपुर पहुंचा 10 बजे। 3 घंटा लग गया, जबकि 1.5 घंटे रास्ता था, चल ही नहीं पाए। लग गया होगा। बिल्कुल शाम को 7 बजे थी। हाँ सर, आप भी ये कह रहे हो, मैं दिल्ली से भी उतरा, जब यूएस गया था बेटी के पास, तो मैं 8 को उतरा वहां पर, तो इतना ज्यादा क्या कहते हैं, इतना ज्यादा विजिबिलिटी, AQI 475,000 का। आप सोचिए कि विजिबिलिटी 5 बजे खत्म थी बिल्डिंग्स की, और फिर आते आते इतना कोहरा हुआ कि वही आना मुझे 470 किलोमीटर करीब क्या कहते ले गया, 7-8 आवर्स। अभी तो 10 दिन पहले आगरा हाईवे में 70 गाड़ी टकराए थे एक दूसरे से, लखनऊ आगरा हाईवे में 70 एक दूसरे पे चले गए।
और सर एक जरूर मैं शेयर करूंगा जी कि सर यूएस में कैलिफोर्निया में मैं रहा और आइसोमेटी में रहा, प्लस क्या कहते हैं लॉस वेगास भी गया, कई जगह गया। आप सोचिए AQI कितना हो सकता है वहां का, यूएस का। दिल्ली 475 है, हाँ कानपुर आपका होगा 200 के आसपास, 200 अबव 200 इतना होगा। यूएस कितना हो सकता है? केवल सर ओनली 22। हाँ तो अब सोचिए कितना बहुत बहुत डिफरेंस है। और मॉइस्चर मैंने ये फील किया कि वहाँ मॉइस्चर नहीं, ह्यूमिड नहीं है। पानी भी खूब बरस रहा है, इस समय सीजन रहता है कैलिफोर्निया में रेन्स का। तो आप सोचिए कि ह्यूमिडिटी नहीं, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं। पानी बरसेगा, बहुत बरसेगा, स्नो गिरेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मॉइस्चर नहीं है वेदर में। सही बात है। चलिए सर, सब लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। सब लोग को आगे जलाने आसो दीजिए। तिवारी मना कर रहे हैं, सब लोग तिवारी। दीजिए। और किसी को कुछ कहना नहीं तो हाँ ठीक। सब बुगरा साहब कुछ कहिए, हरियमगिरी से और दिल्ली से तो कुछ। तो मेरे ख्याल में और कोई पॉइंट नहीं है, अगले महीने मिलेंगे। तो ललित जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब, मैं कहूँगा आप वोट ऑफ थैंक दो, क्योंकि बाकी सब लोग घर जाने का बोलो, क्योंकि हम लोग 3 स्वेटर पहना हो, 2 स्वेटर और 1 जैकेट पहना हो, ठंडी सबको लग रही होगी। बहुत सर्दी पड़ रही है। हाँ ठीक है सर, बस आए हुए सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि आज जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा हुई, काफी अच्छी चर्चा हुई सर। और दीप्ति जी ने काफी अच्छा समझाया कैसा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे वैल्यूएशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी आपको। और बस अगली मीटिंग में हम सब फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट।